how we are doing. Like the resistance, like the length. Suppose we have a conductor whose uh, original resistance at 0 degrees Celsius was R naught, and R naught was the resistance at 0 degrees Celsius. Then you have increased the temperature of the conductor by T degrees Celsius. So there will be the increase in resistance. So the increase in resistance, okay, increase in resistance del R, that would be directly proportional to how much temperature you have increased, and that would be directly proportional what was the original resistance. So we have combined both of this, and so del R is proportional to R naught and T, मतलब the original resistance and increase in temperature. So if we want to remove this proportionality sign, we have to introduce a proportionality constant. It is called alpha. Alpha is called temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. Okay, so because it is related to temperature. So now what will be the final resistance at temperature T? So temperature at T is equals to what was the temperature at 0 degrees Celsius plus how much temperature has been increased. That would be the total temperature. So what is this? So temperature at 0 degrees Celsius plus temperature at how much temperature has been increased when you increase the temperature. So how much temperature has been increased? We have got it. So del R is equals to, we have put it alpha R naught into T. Now this is a new quantity alpha, temperature coefficient of resistance, that we have to define here. We have to find how much it is. So for that, from this relation, what we can write, that R naught will go here, so it will become RT minus R naught, and it will be alpha R naught T. So R is equals to RT minus R naught upon R naught into T. So what is this? RT minus R naught, what is this? That is change in temperature or increase in, sorry, that is change in resistance or increase in resistance, can we say? That is your increase in resistance. So R naught is what? Increase in resistance upon what? Original resistance into rise in temperature. Rise of temperature or rising temperature, whatever you are writing. Okay, so what we can define, how you can define temperature coefficient of resistivity? It is defined as increase in temperature per unit original resistance per unit rise in temperature. Can we define it like that? That what is temperature coefficient of resistance? It is the increase in resistance or the change in resistance per unit the original resistance per unit change in temperature. Can we define it like that? Like you were defining your thermal coefficients of expansion. Similarly, in similar way, we can define it. So what is temperature coefficient of resistance? First, temperature coefficient of resistance, okay, is defined as the increase in resistance, the increase in resistance per unit original resistance, per unit original resistance per unit increase in temperature. So that is your temperature coefficient of resistance. This is a formula which you can note it down, or this you can remember. Both, any of that you can remember. That is your temperature coefficient of resistance. So this value, the temperature coefficient of resistance, on what? किस पे depend करेगा ये बताओ? On which thing it will depend? It will depend on materials or their physical dimension.
नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा ये, यस और नो, और इट विल डिपेंड ऑन द फिजिकल डायमेंशन, या मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो अब ये बताओ कि जो मटेरियल्स होते हैं, लाइक मटेरियल्स आर लाइक metals. For metals, alpha is positive. Alpha is positive. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वैसे बाय द वे? रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस की यूनिट कैंसिल होगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट वुड बी यूनिट, ऐसा यूनिट। सो मेटल की पॉजिटिव मीन्स दिस वैल्यू ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। On increasing temperature, resistance will increase. But for semiconductors and insulator, इनमें क्या होगा? सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, देखो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में वैल्यू होती है नेगेटिव, क्योंकि उसका रीजन ये है, जब अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स को, जब डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अपनी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो देखो मेटल्स देखो इसमें क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर दोनों n की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब चार्जेस फ्री होते हैं मूव करने के लिए। जैसे कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक इन सॉलिड स्टेट इट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बट इफ यू विल मेल्ट इट, सो व्हेन यू विल मेल्ट इट, कैन इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी? मेल्ट करने के बाद ये बहुत ज्यादा मेल्ट कर दोगे तो इंसुलेटर्स और इनकी मतलब कि इतना नहीं कि टोटली कंडक्ट कर दें, बट स्टिल देयर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, होल पेयर्स और एन की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ओके, सो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, सो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर एन बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो दैट मीन्स व्हाट विल हैपन हियर? क्या होगा? Metals and for semiconductors, the value of alpha is negative. So on increasing temperature, resistance decreases. ठीक है, अब ये हो गया, दो चीजें हो गई। अब एक बात बताओ, I'm asking one thing, कि अपने को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स हो, है ना, जिनका रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो उनके लिए अल्फा की वैल्यू कैसी चाहिए? तुमको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा? अल्फा की वैल्यू ज्यादा है मतलब कि रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज हो रहा है थोड़े से टेम्परेचर चेंज में, और अल्फा की वैल्यू कम है मतलब कि रेजिस्टेंस कम चेंज हो रहा है इवन इफ यू आर चेंजिंग द लार्जर टेम्परेचर। सो इफ यू वांट टू मेक अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, सॉरी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, सो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्या होगी? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब कि पर्टिकुलर, स्टैंडर्ड की मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट होती है कि अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहा है टेम्परेचर में तो रेजिस्टेंस अफेक्ट ना हो, रेजिस्टेंस अफेक्ट ना हो। तो जब रेजिस्टेंस अफेक्ट नहीं होगा तभी अपन उसको स्टैंडर्ड बोल पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ, गर्मियों में उस वायर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सर्दियों में उसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो क्या वो रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कहलाएगा? नो सर, नहीं ना, वो स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा कम ज्यादा किया अपन ने, 10 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस जो भी वेदर के कारण चेंज हुआ, उसके कारण वायर की रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो क्या वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कहलाया? नहीं। तो उसके लिए अगर अपन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं तो अपने को अल्फा की वैल्यू कैसी चाहिए?
कम होनी चाहिए। हाँ, एज मिनिमम एज पॉसिबल, कि कम से कम उनका रेजिस्टेंस चेंज हो। नहीं, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव का मतलब तो डिक्रीज होना हो गया, है ना, नेगेटिव का मतलब तो डिक्रीज होना हो गया। कम से कम होनी चाहिए, है ना, जीरो तो नहीं हो सकती, बट कम से कम होनी चाहिए। तो क्या होता है कि अपने पास कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके अपन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं, लैब में आओगे तो दिखाएंगे, है ना। जैसे वायर होती है मैग्नीन, मैग्नीन वायर होती है, कॉन्स्टेंटन वायर होती है, ये एलॉयज होते हैं एक्चुअल में, दीज आर दी एलॉयज। दे हैज द वेरी देयर अल्फा इज वेरी लेस। अल्फा इज वेरी लेस मींस व्हाट, कि इनका अगर अपन टेम्परेचर चेंज करें तो क्या इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा? नो सर। नहीं, इनका रेजिस्टेंस ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। देखो, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कुछ दूसरे कारणों से भी चेंज हो सकता है, जैसे कि अपन ने एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाया। अब तुमने जूल सीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया है, क्लास 10 तो पढ़ा था जूल सीटिंग इफेक्ट, है ना, कि अपन किसी वायर से बहुत देर तक करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है आई स्क्वायर आर टी, है ना जी, आई स्क्वायर आर टी की हीट जनरेट होती है। मतलब कि एक वायर है, कोई भी वायर, उसमें अगर अपन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक करंट फ्लो कराते रहेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट जनरेट हो रही है ना, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस फिर से बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस यस फिर सर। से बढ़ जाएगा। तो अपने को क्या ये चीज अपन एक्सपेरिमेंट में ला सकते हैं? नहीं, वी डू नॉट वांट दिस थिंग। अब वी अपन ये चाहते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट इट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए कि जो भी अल्फा की वैल्यू है वो कम से कम होना चाहिए, चेंज इन रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लीस्ट इवन इफ देयर इज अ लिटिल बिट चेंज इन द टेम्परेचर इज देयर। सो अल्फा शुड बी वेरी वेरी लेस। किसके लिए? स्टैंडर्ड। एक और होता है इसको यूरेका बोलते हैं, एक और, these are the alloys for making the standard resistance, है ना। तो क्यों इनका ये होता है, एक why these are used for making standard resistance, तो इनके फॉलोइंग कुछ रीजंस। पहला रीजन ले लो, alloy has very high value of resistivity, high value of resistivity, मेटल से तो ज्यादा होती है। सेकंड, small value of temperature coefficient of resistance, small value of temperature coefficient of resistance, okay। Then third, resistance is least affected by the atmospheric condition. Resistance of these least affected by atmospheric condition. Condition like air, moisture, pressure, एक्सेट्रा। अच्छा, तुम लोगों ने फिजिक्स लैब में रियोस्टेट देखा है, तुम लोगों ने फिजिक्स लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स देखे हैं, यस, वी हैव सीन इट, है ना। तो इनमें जो वायर यूज होती है बेटा, इन्हीं में से कोई एक मटेरियल जो है, अलग अलग कंपनी के, अगर अलग अलग तो वो अलग अलग, बाकी होते वो यही यूज है, क्योंकि दे गिव्स यू द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, तो उनका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि कंडक्टर अगर अपन यूज करेंगे तो कंडक्टर का अगर अपने को हाई रेजिस्टेंस बनाना है तो कंडक्टर बहुत ज्यादा लंबा चाहिए अपने को और बहुत पतला। सो कंडक्टर से अपन रेजिस्टेंस नहीं बनाते, ध्यान में रखना कभी भी। जो अपने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनते हैं वो कंडक्टर से नहीं बनते हैं, वो बनते हैं अपने किससे? एलॉय से। इज दैट क्लियर? क्योंकि कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो अगर तुमको 5 या 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है तो बहुत लंबी वायर चाहिए और बहुत पतली वायर चाहिए। अब पतली होगी तो टूट भी सकती है, तो इसलिए मेटल्स आर नॉट रिलायबल और नॉट प्रिफर्ड फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। व्हाट आर प्रिफर्ड? एलॉयज। Sir, what इज is दैट that second क्लियर? and third one?
Second one is the small value of temperature सर coefficient of अलॉय resistance. अलॉय Alloy, ये सब alloy के लिए है बेटा. All of these are for alloy only. First is manganese, second is Constantan, and third is Eureka. Constantan and यूरेका, ये वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला यूरेका, आर्किमिडीज वाला यूरेका है. ओके. नाउ रेजिस्टिविटी के लिए भी अपन लिख सकते हैं सेम फॉर्मूला. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रो इज इक्वल्स टू रो नॉट प्लस रो अल्फा डेल टी लिख सकते हैं, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ दिस रो माइनस रो नॉट, बिकॉज length and all this will be get cancelled, t rho naught into del t, ये लिख सकते हैं अपन. So that would be in terms of temperature dependency of resistivity. Dependency of resistivity. ठीक है. So metals के लिए ध्यान में रखना, अलग अलग के लिए मैं बना देता हूं, है ना. पहले अपन डिस्कस करते हैं फॉर मेटल्स, कंडक्टर्स. अल्फा फॉर मेटल्स. सर वो metals अलाउ के लिए था ना, क्या? ऊपर जो लिखा है अलाउ के लिए था ना. हाँ, ये सारी चीजें अलॉय के लिए हैं बेटा. ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के बारे में अपन ने डिस्कस किया. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस. ठीक है. अब देखो यहां पर मेटल्स के अल्फा के बारे में डिस्कस करते हैं. तो मेटल्स का जो ग्राफ आता है विथ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स या मेटल्स, वो कुछ इस तरीके का रहता है ना. स्क्रॉल डाउन. ओके, इज इट? अच्छा पहले लिख लो फिर डिस्कस करते हैं. सर more, note it down, then we will discuss. Done? Written? हाँ सर लिख लिया. Okay. देखो, now this is for conductors. So conductors, let's say resistivity is here 1, 4, 2, 0.2, 0.4, and this is in resistivity is 10 to the power minus 8 ohm meter, and temperature is 50, 100, 150. So like this it is changing very high. मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस में इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, 150 में बहुत ज्यादा, और अगर 200 ले लोगे तो बहुत ही ज्यादा इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना, 10 to the power this. अब अगर अपन एलॉय की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एलॉय. सो इन एलॉय there is a very least change in the resistivity. Here also resistivity will be there, but that resistivity will not be in that, it will be, ये मीटर लिख लो इधर पे, ओम मीटर, it will be micro ohm centimeter, micro ohm centimeter, है ना. And here will be your this 1, it will be 1.1, and then here it can be 1.2, and this temperature increases too much, 200, 400, 600, 800, 1000, whatever. So there is very least change in resistivity even if you will change the temperature. And if you talk about मैग्नीन की अगर अपन बात करें,
तो मैग्नीन का जो रेजिस्टिविटी का ग्राफ आता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इट कम्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू टेम्परेचर. मींस इफ यू विल चेंज द टेम्परेचर, will the resistivity of मैग्नीन will change? No, sir. No. So that's why the graph comes for magnets perfectly straight. अच्छा, सेमीकंडक्टर के लिए कैसा आएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस. तो सेमीकंडक्टर्स की इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, रो दिस. तो इन सेमीकंडक्टर्स on increasing that temperature resistivity will decrease. resistivity क्या हो जाएगी तुम्हारी? डिक्रीज. ठीक है, got it? Is that clear, everyone? So these are the 4 graphs. देखो, सेमीकंडक्टर्स के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं जो लिख लो. तो इसको बाद में भी अपन डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर में. फॉर सेमीकंडक्टर्स, देखो सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी अपनी क्या होती है? यूजुअली m(n)e² टाउ होती है. दिस इज द रेजिस्टिविटी. यस, means resistivity you can say it is inversely proportional to n. Yes, n is what? Number density of charges, density of carriers, you can say, of current carriers. Number density of current carriers, that is there. अब इसमें एक चीज और है कि ये जो n है ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है. दिस इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर. Okay, so how does the increases? N at T is equals to N0 e to the power minus Eg upon kVT. kV means Boltzmann constant. So can we write V upon N Eg upon kVT? अच्छा, अब देखो ये रिलेशन ध्यान से देखना बेटा, है ना. Everything I am going to define here. Here N0 is Sir, what is that EG? EG. I am telling everything, don't worry. हर एक चीज मैं बता रहा हूँ. Here N0 is number density of charges at 0 degree Celsius, है ना. EG जो होता है बेटा, ये होता है बैंड गैप. अब देखो बैंड गैप का मतलब क्या होता है बताता हूँ. देखो, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री बट दे आर इन द वैलेंस बैंड. मतलब कि वो अभी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनको तुम थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो वो जंप करके कंडक्ट करने लगते हैं. उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाती है, क्योंकि 2 तरह के बॉन्ड देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड. इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और जब यहाँ पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड अ बैंड गैप. और उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Eg से. और ये टेम्परेचर T है. तो अब ये बताओ कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा? ये वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी? Think about this, that complete this denominator. If you will increase the temperature, तो Eg by kBT. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी. यस, पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पूरी वैल्यू कम हो जाएगी. पूरी वैल्यू कम हो जाएगी मतलब E की पावर कम हो रही है. द पावर ऑफ E इज डिक्रीजिंग. इफ द पावर ऑफ E इज डिक्रीजिंग मींस हियर दिस कंप्लीट डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग. सो मींस व्हाट विल हैपन इफ डिनोमिनेटर विल डिक्रीज? ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी. यस, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी?
बढ़ जाएगी, या लॉग, है ना। तो क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज। देखो फिर से देखो, पूरे फॉर्मूला देखो, इस पूरे फॉर्मूला में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच लेयर। फर्स्ट, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन एन लाइक दिस एंड एन इज इक्वल्स टू दिस। तो ये फॉर्मूला को मैंने इस तरीके से लिखा। अब इस फॉर्मूले में केवल अपन इस ई की पावर को देखें, तो अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दिस कंप्लीट वैल्यू विल डिक्रीज। तो ये पूरी वैल्यू जब डिक्रीज होगी, तो मतलब कि यहाँ पर ई की पावर डिक्रीज होगी, ई की पावर डिक्रीज होगी, मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन में दिस डिनोमिनेटर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर विल डिक्रीज, एंड इफ द डिनोमिनेटर डिक्रीजेस, मतलब कि रेशो तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब रेशो इंक्रीज होगा तो n की वैल्यू इंक्रीज हो गई, n की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इफ n इज इंक्रीज इट मींस रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, yes, resistivity will decrease or not? Shashank sir कहोगे? Okay, so this is how the resistivity of semiconductor changes. It is not as easy as for this. तो यहाँ पर resistivity क्या होती है, change होती है. Is that clear to everyone? How does the resistivity of semiconductor changes? Is it clear? है ना। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना तो समझ में आ जाएगा, जिनको समझ में नहीं आया, है ना। क्यों क्यों रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, क्यों नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, क्यों नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में है इनको एनर्जी मिलेगी और ये एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो यहाँ एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जब एन की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो मोर चार्जेस आर देयर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, एंड इफ मोर चार्जेस आर देयर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी मींस रेजिस्टिविटी विल decrease. That is the whole sole purpose of studying. Am I clear? यस सर। वो सो रहा है क्या? नहीं सर। So that is there. Now we have सर वो एन नॉट क्या है? what, Kunal? सर एन नॉट N naught is a you can say the number density of charges at 0 degree Celsius. Okay, at 0 degree Celsius. अच्छा, ये एब्सोल्यूट जीरो तुमको पता है? व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? ऑल मोशन स्टॉप्स, राइट? यस सर। मतलब अगर यहाँ पर टेम्परेचर देखो, इफ नाउ यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द रिवर्स वे। इफ यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। Sorry, if you will decrease the temperature here, Eg upon kBT, if you will decrease the value of temperature, so this value will increase complete। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा मतलब कि ये पूरा डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इनफिनिट। अब एब्सोल्यूट जीरो पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। At T is equals to 0 Kelvin, absolute zero which we talk about, this value will become infinity, means e to the power this will become infinity। तो मतलब अगर यहाँ पर infinity आ गया, so infinity upon something upon infinity क्या होता है, zero होता है, and T will become 0 at 0 Kelvin। So if rho is equals to 1 upon n and this is 0, so resistivity क्या हो जाएगी, infinite हो जाएगी। So at 0 Kelvin, semiconductor does not conduct any electricity। Semiconductor क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। At 0, near by the 0 Kelvin, semiconductor becomes insulator। Near by 0 Kelvin, semiconductor becomes insulator। Is that clear?
nearby 0 Kelvin, semiconductors becomes insulator, and resistivity decreases with increase in temperature. And in semiconductor, resistivity decreases with increase in temperature. This you can write. Okay. Guys, this series combination and parallel combination of resistance, can you do it by yourself? Series combination of resistance and parallel combination of resistance? Yes, or do I need to explain that? Series combination and parallel combination of resistance. Do I need to explain that? Okay. Badhiya. So series and parallel combination of resistance you guys will do by yourself. And in this एक छोटी सी चीज बनती है ohmic and non-ohmic devices. तो ohmic and non-ohmic devices, so ohmic devices which follows the Ohm's law, non-ohmic devices which does not follow the Ohm's law. सिंपल वे में जिन मेटल्स का ग्राफ V by I स्ट्रेट लाइन आता है वो ओमिक डिवाइस कहलाते हैं, और जिनका ग्राफ V by I स्ट्रेट लाइन नहीं आए, ठीक है, चेंज हो इस तरीके का रहे, तो वो कौन से डिवाइस कहलाएंगे? तुम्हारे नॉन ओमिक डिवाइस कहलाएंगे. ओके, ओमिक डिवाइस विच फॉलोज द ओम्स लॉ, नॉन ओमिक डिवाइस विच डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ. जैसे अपना एलईडी होता है ना, ये नॉन ओमिक डिवाइस कहलाते हैं. कंडक्टर्स ऑल्सो बिकम्स नॉन ओमिक डिवाइसेस व्हेन यू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाएगा. तो वहां पर ऑन चेंज व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर, so the conductor does not release the ohmic devices, they fails the Ohm's law, है ना? So that is there. So this is all about it, the resistivity of temperature dependency. You do parallel combination and series combination को एक बार देख लेना, है ना? Tomorrow we are going to study about the electric cell and their internal resistance. Okay, is that clear?